सुनील सर स्काई फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस क्लास में हम स्टैंडर्ड 12th की फ़िज़िक्स पढ़ेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड 12th की फ़िज़िक्स को हम 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकेंड ऑप्टिक्स एंड थर्ड मॉडर्न फिज़िक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट व्हेन चार्ज एट रेस्ट, इसमें 2 लेसन इंक्लूड होगा। फर्स्ट लेसन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, सेकेंड लेसन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसका सेकेंड पार्ट आता है व्हेन चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, इसमें थर्ड लेसन आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, फोर्थ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, फिफ्थ मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसका थर्ड पार्ट आता है व्हेन एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज, इसमें 6 लेसन आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 7th अल्टरनेटिंग करंट एंड 8th लेसन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इसके बाद ऑप्टिक्स में 2 लेसन, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स, न्यूक्लियस, सेमीकंडक्टर्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। हम देखेंगे फर्स्ट लेसन दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। What is the basis of electricity? Answer is electric charge. Then what is an electric charge? Electric charge and mass both are internal property of any matter. दो मास के बीच में ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जबकि दो चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स लग सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज is the intrinsic property of elementary particles of any matter due to which attractive or repulsive force acts with other charges. Fundamental of electric charge is denoted by E and its SI unit is coulomb and denoted by capital C, and its CGS unit is electrostat unit or ESU. Magnitude of fundamental charge is 1.6 10 raised to minus 19 coulomb, and 1 coulomb is equal to 3 into 10 raised to 9 ESU. There are 2 types of charge. Types of charges. First positive and second negative. Positive charge is denoted as plus E and a negative charge is denoted as minus E. Plus E charge on proton and minus E charge on electron. When there is like charges that is plus plus or minus minus, they repel each other, and unlike charge plus minus or minus plus, they attract each other. अब हम देखेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स, देयर चार्जेस एंड देयर मासेस। ठीक है, हियर इज नेम ऑफ पार्टिकल्स, हियर इज मास and here is charge. Name of particle is first particle electron. Mass of electron is 9.1 10 raised to minus 31 kg, and charge on electron is minus 1.6 10 raised to minus 19 coulomb. Second particle is proton. Mass of proton is 1.672
10⁻27 kg, and charge on proton is same as electron but it is positive, and the third particle is neutron. Mass of neutron is 1.674 10⁻27 kg, and चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कंडक्टर्स. What is conductors? Conductors are those materials which have free electrons at room temperature. Example of conductors is iron, silver, gold, copper, aluminum, sodium, magnesium, potassium, etc. are example of conductors. And second, insulator. Insulator means का opposite. The materials which have no free electrons at room temperature are called insulators. Example of insulator is wood, glass, paper, etc. are example of insulators. What is free electron? Free electron means those electron which is situated at outer orbit of any atoms which are loosely bound with the nucleus. If some amount of thermal energy is given at room temperature, then that electron are separated from the atoms and free to move inside the material. That is called free electrons. Okay, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा. अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मेथड ऑफ चार्जिंग. मेथड ऑफ चार्जिंग. किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स. फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. सेकेंड, चार्जिंग बाय कंडक्शन, एंड थर्ड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन. फर्स्ट 2 मेथड में दोनों बॉडी का कांटेक्ट होगा, बट थर्ड मेथड में बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएगी फिर भी चार्ज हो जाती है. तो देखते हैं इसमें फर्स्ट मेथड, दैट इज़ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन टू different bodies rubbed with each other, each body gets charged. ठीक है, जैसे अगर हमने एक पेपर लिया और ये मार्कर है, इसको रब करेंगे, ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट होगा और उस हीट के कारण क्या होगा, एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर चार्ज आएगा प्लस, और जिस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर चार्ज आएगा माइनस. तो एक बॉडी प्लस चार्ज होगी और दूसरी बॉडी माइनस चार्ज होगी. तो इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. ठीक है, इसमें मटेरियल का कुछ ऑर्डर याद रखना. ठीक है, सबसे पहला आता है कैट्स फर, उसके बाद ग्लास रॉड, उसके बाद कॉटन, उसके बाद पेपर, उसके बाद सिल्क
क्लॉथ्स, ठीक है। उसके बाद वुड, मेटल, एबोनाइट, रॉड्स, ठीक है। इसमें और भी मटेरियल है, ठीक है। इसमें इतना नेम लिखा हुआ है। अगर हम कैट्स फर और ग्लास रॉड को रब करेंगे, ठीक है, तो ऊपर वाले पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और नीचे वाले पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अगर हमने ग्लास रॉड और पेपर को रब किया तो ग्लास पे आएगा चार्ज प्लस और पेपर पे आएगा चार्ज माइनस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ठीक है। इसमें सेकंड मेथड आता है जिसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन है, सॉरी कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें क्या होगा, एक बॉडी फुल चार्ज रहेगा और दूसरा बॉडी अनचार्ज रहेगा। अगर दो बॉडी आइडेंटिकल है, ठीक है, उन दोनों को कांटेक्ट में लाओगे तो एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र होता है। कैसे होता है उसको देखते हैं। सपोज़ हमारे पास दो मेटल स्फीयर है आइडेंटिकल, ठीक है। एक मेटल स्फीयर पे इनिशियली पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे कोई भी चार्ज नहीं है। जब इन दोनों मेटल स्फीयर को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए, डायरेक्ट कांटेक्ट करा सकते हो या फिर एक वायर के थ्रू इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हमने क्या किया, इसको एक वायर के थ्रू ज्वाइंट किया, ठीक है, तो मेटल स्फीयर है, मेटल में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। यहाँ से फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे जाएगा, इस वायर के थ्रू आएगा। एक फ्री इलेक्ट्रॉन इधर से निकला है तो इधर पे चार्ज कैसा आएगा, प्लस। वो इलेक्ट्रॉन आके क्या करेगा, इसको न्यूट्रल करेगा, ठीक है। इसको न्यूट्रल करेगा, ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। अभी भी अनबैलेंस कंडीशन है, ठीक। तो यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इधर से इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर चार्ज आया प्लस, वो इलेक्ट्रॉन आके इस प्लस वाले को क्या कर देगा, न्यूट्रल, ठीक है। अभी दोनों साइड चार्ज क्या हो गए, बराबर, ठीक है। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो हमको पहले बॉडी क्या था, फुल चार्ज था। जब हमने कांटेक्ट में लाया तो इसका चार्ज इस पर ट्रांसफ़र हो गया। ऐसा नहीं कि इसका जो दो प्लस था इधर आ गया, हुआ क्या, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकल के इस प्लस वाले को न्यूट्रल किया, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ इस पर, इसलिए इस पर चार्ज कैसा आया, प्लस, ठीक है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। तो इसका एक रूल याद रखना, ठीक है। अगर पहले वाले स्फीयर पे चार्ज Q1 है, ठीक है, दूसरे वाले स्फीयर पे चार्ज क्या है, Q2, ठीक है। इन दोनों को कांटेक्ट में लाओगे, फिर कांटेक्ट में ला के अगर अलग अलग करते हो तो ईच स्फीयर पे जो चार्ज आएगा, ईच स्फीयर पे जो चार्ज आएगा वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाई 2। ये क्या होगा, चार्ज ऑन ईच स्फीयर। इस मेथड का यूज़ हम न्यूमेरिकल में करेंगे, ठीक है। अगर इस पे चार्ज Q1 है, इस पे Q2 है, तो इस पे क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इस पे भी क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 बाई 2, ठीक है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हम देखते हैं थर्ड मेथड, दैट इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो इसमें दो मेटल स्फीयर है, ठीक है, दोनों इनिशियली अनचार्ज्ड हैं, ठीक है, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पे हम एक पॉजिटिव रॉड लेके आते हैं, ठीक है। इस रॉड का मेटल स्फीयर के साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव रॉड लेके आएंगे, ठीक है। तो इस मेटल स्फीयर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा किधर अट्रैक्ट होगा, टुवर्ड्स द रॉड, ठीक है। अब यहाँ से जितना इलेक्ट्रॉन इस साइड आएगा, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक प्लस, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो फिर प्लस, ऐसे जितना इलेक्ट्रॉन इधर आएगा उतने इधर क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है, पहले वाले स्फीयर में। दूसरे वाले स्फीयर में क्या होगा, अब इधर प्लस है तो इस मेटल स्फीयर का जितना भी
फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और फ्री इलेक्ट्रॉन किधर अट्रैक्ट होंगे, इस साइड, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं कहाँ से आए हैं, इस एटम से आए हैं, ठीक है। तो उस एटम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इधर माइनस है और इधर प्लस है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके इसको न्यूट्रल करेगा, ठीक है। ऐसे ही न्यूट्रल हो गया, तो ये वाला कंडीशन मिला। यहाँ पे इस स्फीयर के लेफ्ट साइड में नेगेटिव और यहाँ पे सेकेंड वाले स्फीयर के राइट साइड में पॉजिटिव, ठीक है। अभी भी दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है। फोर्थ डायग्राम में देखो, अभी मेटल स्फीयर को थोड़ा सा सेपरेट कर दिया, अभी भी रॉड यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इसके कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रिपेल होके इस साइड रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस रॉड को हटा देते हैं। इस रॉड को हटा दोगे, ठीक है, तो इधर क्या था माइनस और इधर था प्लस, ठीक है। तो दोनों में अट्रैक्शन होगा, दोनों क्या होंगे, इस टाइप से आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो दोनों स्फीयर पे चार्ज आ गए, एक पे नेगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव। अब इनको पूरा सेपरेट रख दो। सेपरेट जब रखोगे तो ये क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है इस मेटल स्फीयर में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। और ये पॉजिटिव जो आयंस है वो भी इस मेटल स्फीयर में क्या होंगे, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इनिशियली स्फीयर क्या था, अनचार्ज था, अभी क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है। देयर इज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रॉड एंड मेटल स्फीयर बट both sphere gets charge. This is called charging by induction. अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसके हेल्प से हम पता कर सकते हैं किसी भी बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? तो आंसर इज टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट ऑन ए बॉडी। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन कैसे होता है, ठीक है। इसको फंक्शन के लिए डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है, इंसुलेटेड ग्लास ट्यूब, ठीक है। इस ग्लास ट्यूब में एक मेटल रॉड, ठीक है। इस मेटल रॉड के अपर एंड पे एक मेटल नॉब और लोअर एंड पे गोल्ड लीफ लगा हुआ है, ठीक है। इस मेटल रॉड को होल्ड करने के लिए एक रबर स्टॉपर लगा हुआ है, ठीक है। जिस बॉडी पे चार्ज हमको पता करना है उस बॉडी को इस मेटल नॉब के पास में लेके आते हैं। सपोज़ इनिशियली इस बॉडी पे चार्ज कैसा है, प्लस, ठीक है। तो इसके पास में हमने लाया है रॉड को, ठीक है। जिस बॉडी पे चार्ज पता करना है इसके पास में लाया है, ठीक है। तो गोल्ड लीफ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ पे जाएगा, ऊपर, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या आना चाहिए, अट्रैक्शन के कारण नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है तो इस लीफ पे भी क्या आएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, ठीक है। और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकला तो इस लीफ पे भी क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे, इस जगह पे, ठीक है। अगर इधर और चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ से और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहाँ से और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पे आएगा प्लस, और इलेक्ट्रॉन निकला तो इधर भी क्या आएगा, प्लस, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस, ठीक है। इस बॉडी पे जितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, उस पर उतना, इस गोल्ड लीफ पे उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो गोल्ड लीफ क्या होगी, स्प्रेड होगी। स्प्रेड होगी तो इससे पता चल जाएगा इस बॉडी पे चार्ज है या नहीं, ठीक है। जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव रॉड लाएंगे, ठीक है, नेगेटिव रॉड लाएंगे तो इधर का जो इलेक्ट्रॉन है रिपेल होके कहाँ पे आ जाएगा, इधर नेगेटिव और इधर नेगेटिव, ठीक है। और वापस से क्या होंगे, स्प्रेड होंगे, तुमको पता चल जाएगा इस बॉडी पे चार्ज है या नहीं, ठीक है। तो इस डिवाइस के हेल्प से हम पता कर सकते हैं किसी भी बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट है या नहीं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या होता है, तो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए सिस्टम इज अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्जेस प्रेजेंट एट डिफरेंट पॉइंट विद इन द सिस्टम, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है।
the total charge present on a system is algebraic sum of all charges located at different points within the सिस्टम। ठीक है, किसी भी बॉडी पे जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू पहला चार्ज, दूसरा, तीसरा, जितने भी चार्ज रहेंगे टोटल का अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम मीन्स अगर प्लस है तो प्लस के साथ, ठीक है, और माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ ऐड होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस पे चार्ज है Q1, Q2 माइनस Q3 और Q4, तो टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4। ठीक है, ये उस बॉडी पे टोटल चार्ज होगा। ठीक है, अलजेब्रिक सम मीन्स प्लस है तो प्लस साइन के साथ और माइनस है तो माइनस साइन के साथ हम ऐड करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या? कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सेकेंड प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। कंजर्वेशन मीन्स टोटल हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन होगा, द टोटल चार्ज ऑफ एन isolated system remains constant. Total charge of an isolated system remains constant। या फिर इसको दूसरी डेफिनेशन हो सकती है, चार्जेस कैन neither be created nor destroyed. It can transferred from one body to अदर बॉडी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सोडियम एटम है, ठीक है, इसको हमने एनर्जी दिया, हीट दिया, ठीक है, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे चार्ज है प्लस, और इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होगा? ये माइनस। ठीक है, तो रिएक्शन के पहले टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम कितना है? 0। ठीक है, रिएक्शन के बाद टोटल नेट चार्ज क्या है? प्लस और माइनस मिल के क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसका दूसरा एग्जांपल क्या होगा? जैसे अभी हमने एक एग्जांपल किया था, ठीक है, जिसमें ए पेपर और रॉड को हमने क्या किया था, या मार्कर को हमने रब किया था। ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण एक पे आया था प्लस और दूसरे पे आया था माइनस। ठीक है, तो रब करने के पहले टोटल चार्ज क्या था? 0।
ठीक है। रब करने के बाद एक पे जितना प्लस आया उतना ही माइनस आया, ठीक है। तो टोटल चार्ज ऑफ बोथ द बॉडी मिलके क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो प्रोसेस के पहले भी टोटल चार्ज 0 था और प्रोसेस के बाद में भी नेट चार्ज क्या है, 0। तो इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इसी में है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है फंडामेंटल चार्ज के मल्टीपल में होता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्या था, E, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE, ठीक है। वेयर N का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3, ठीक है, इंटीजर नंबर, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू -NE, ठीक है। और फॉर प्रोटॉन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +NE, ठीक है। वेयर E का वैल्यू पता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ E इज 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब अभी तक हमको पता था कोई भी मैटर है, ठीक है, किससे मिलके बना होता है, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम से, ठीक है। एटम को अगर फर्दर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, स्प्लिट करते हैं, तो उसके अंदर हमको मिलता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। लेकिन मॉडर्न रिसर्च के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, जिसको हम बोलते हैं क्वार्क्स, ठीक है। अब एक क्वार्क क्या होता है, ठीक है, तो क्वार्क अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। कोई भी मैटर है किससे मिलके बना होता है, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम से, ठीक है। मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, एटम्स, ठीक है। इसको फर्दर स्प्लिट करोगे तो इसके अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। लेकिन ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी किससे मिलके बना होता है, क्वार्क्स, ठीक है। अब एक क्वार्क्स क्या होता है, अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। पहला अप पे जो चार्ज होता है +2/3e, ठीक है। और दूसरा डाउन, इस पे जो चार्ज होता है -1/3e, ठीक है। अप डाउन, ठीक है। उसके बाद 4 स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम, टोटल 6 टाइप्स के क्वार्क होते हैं, ठीक है। अप डाउन 4 स्ट्रेंज, टॉप एंड बॉटम। चार्ज इस पे, ठीक है, इस पे भी सेम +2/3e, और इस पे भी क्या होगा -1/3e, और इस पे भी क्या होगा -1/3e, ठीक है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी किससे मिलके बना होता है, क्वार्क से,
ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए हमको अप और डाउन क्वार्क लेना है, ठीक है। तो प्रोटॉन के लिए जो हमको क्वार्क चाहिए, टोटल 3 क्वार्क चाहिए, ठीक है। टोटल 3 क्वार्क में इसमें से 2 होता है अप, ठीक है। किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन के लिए 2 अप क्वार्क, अप अप, और एक क्या चाहिए? डाउन, ठीक है। अप क्वार्क मतलब क्या? +2/3e। दूसरा अप मतलब क्या? +2/3e। और डाउन मतलब क्या हो जाएगा? -1/3e। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? एलसीएम आएगा 3 +2e +2e, और इधर क्या? -e। तो +2 +2 4, एक माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा? +3/3, 3 3 कैंसिल हो गया। तो 4 जान प्रोटॉन कितना है? +e, ठीक है। सेम एज न्यूट्रॉन के लिए जो रिक्वायर्ड क्वार्क है वो क्या होता है? अप डाउन डाउन, ठीक है। अप मतलब क्या हो जाएगा? +2/3e, डाउन 1/3e 1/3e। इसका एलसीएम लोगे क्या आएगा? 3 +2e -e -e -2e +2e, क्या हो जाएगा? 0 / 3, दैट इज़ 0, ठीक है। इसके लिए न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? 0, और प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? +e, ठीक है। तो कोई भी मैटर है, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कोई भी मैटर किससे मिलके बना होता है? कोई भी मैटर किससे मिलके बना होता है? तो इलेक्ट्रॉन प्लस क्या? क्वार्क, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रहेगा और क्वार्क्स कहाँ पे रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर। क्वार्क में दोनों आ जाएगा, हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। Existence of single quark is not possible.